सर करें स्टार्ट हम? जी करें स्टार्ट। जी जी गो है। Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Junaid Ghaffar, and today we are going to start the fourth module of our workshop on ventilation. I will start today's module with the discussion relating to ventilation and monitoring of the ventilation. Basically, whenever we start ventilation of a child or baby, we have to monitor three things. First is the monitoring of the ventilatory settings. One is the settings that we have set on the vent. That is, we have to select the mode of the ventilation, PEEP by PEEP and PEEP of the ventilation, fraction of inspired oxygen, rate, and select an IE ratio. And the second is we have to monitor what are the parameters that are delivered on these settings. That what are the tidal volume that is delivering to the baby, what is the minute ventilation of the baby, what is the total respiratory rate, and what is end tidal CO2 that is coming out of the baby. So these are the monitoring that we done on the ventilator. The second is the clinical monitoring. In clinical monitoring, we will see the clinical parameters of the child. That is the vitals, basically vitals like heart rate, respiratory rate, its oxygen saturation, capillary fill time, input of the baby, output of the baby, neonatal reflexes or GCS of the baby. And the third thing that we monitor is the clinical status of the child through blood gases. In blood gases, as Dr. Samina in second module has clearly explained how to interpret the different ABGs. In ABGs, we look at the four parameters. One is the pH of the blood. Second is partial pressure of carbon dioxide. Third is partial pressure of oxygen. And fourth is the bicarb level. So we will start discussion with a case scenario. In our neonatal ICU, we have an infant of diabetic mother, and the child is admitted due to RDS. And on third day of the ventilation, on the third day, the child was oxygen dependent. And when we sent the ABGs, the ABG of the child is as shown in these picture. Dr. Vakas, kindly read the different parameter of these ABGs. जी उसकी पीएच 7.1 है, ये एसिडीमिया एसिडोसिस है और CO2 ज्यादा है बनिस्बत कार्बन HCO3 के, तो ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। इसके बाद हम इसकी देख लेते हैं कंपनसेशन हुई है या नहीं। तो एक्सपेक्टेड कंपनसेशन के लिए एक वो टेबल था, RDS के साथ ये एक्यूट होगा, तो एक्यूट के बाद ये टेबल एक 10 मिलीमीटर मर्क्यूरी के लिए 1 इंक्रीज होना चाहिए बाय कार। तो इधर 15 इंक्रीज है और 15 इंक्रीज के बाद 1.5 इंक्रीज होना चाहिए। 28 नॉर्मल वैल्यू बाय कार की, तो ये 30 तक होनी चाहिए। अप्रोप्रिएट कंपनसेशन नहीं है इसकी, ये मिक्स्ड डिसऑर्डर है। ठीक है डॉक्टर तैयबा, इसका नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा? व्हाट विल बी द प्लान ऑफ एक्शन ऑन दीस ABGs? So as there is hypercarbia and PO2 is almost in the low normal range. So the 60 millimeter of mercury, we can take it as a permissive hypercarbia. And if the repeat, we can continue with the same and repeat ABGs after 2 to 3 hours. If it is more than this, then we go for, we can intubate the child. सर काइंडली आप अपनी ओपिनियन देंगे। एक बेबी है, थर्ड डे ऑफ एडमिशन है, RDS है, सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, ऑक्सीजन डिपेंडेंस है, हमने उसकी ABGs करवाई हैं, उसमें जो है ना वो ये पिक्चर आ रही है।
यहाँ पे I will highlight two important aspects. I would like to know how much oxygen the child is already getting. Sir, child is on 4 to 5 liter oxygen to the nasal prong. But if he's with 4 liter oxygen with nasal prongs and PO2 is 70, and what about the saturation SPO2? Sir, SPO2 is on load limit 90, 89. Because if you keep this PO2, the SPO2 should be normal. Okay, sir. Either you have to repeat these ABGs, and if there is a associated hypoxia like PO2 is less than 50, or in the next ABGs, if you just continue, you can start with the non-invasive ventilation, like you can increase oxygen concentration further, or you can because CPAP obviously will be contraindicated here, because there is a trend towards CO2 retention. So you cannot use CPAP here. Hypoxia is there, but it's borderline PO2. I think it just need to repeat. And if you get a lower PO2 and further increase in PCO2, then we will ventilate. Okay, sir. Second, I would like to know the condition of the child. Is the child exhausted? What are the signs of, what is the severity of signs of distress? The child was having severe respiratory distress, and at the current moment, the child start having labored breathing. So at that moment, the ABGs was performed, and this ABGs was showing the retention of carbon dioxide. Okay, so there is a worsening of CO2 retention, and Yes, PO2 is falling down, and the child's effort is now exhausting. So Dr. Taiba, now please come and then give your comment. Can you, Dr. Junaid, can you enter values here? No sir, I can't. सर अभी नहीं एंटर कर सकता इसको, फिर वो स्क्रीन. अच्छा, नेक्स्ट हम पता क्या करेंगे, नेक्स्ट फॉर्मेट ऐसा बनाएंगे कि इसके अंदर वैल्यूज एंटर किए जा सकें. सर की जा सकती हैं, आप बताएं, मैं स्क्रीन आउट करके ना. बस सही है, इसको अभी वैल्यूज देना जो रिपीट है बीजीज की. इसको 7 कर लें. ठीक सर ने PH 7, इसको 70 कर लें, और इसको आप 50 कर लें, 49 कर लें. बाइक आप देख लें जितना रखना है, 32 भी रहने दें. जी डॉक्टर तैयबा. Dr. Taiba, what is your opinion now? The child is quite. The child is in respiratory acidosis, and the CO2 level is well above the permissible hypercarbia. Secondly, the child is having a hypoxia as well. So the child is going towards type 1, type 2 respiratory failure. Our next plan of action would be to intubate the child. Right. Okay, Janet. And put on mechanical ventilation. Yeah, I think you add SPO2 as well. Okay. SPO2 as well. Okay, sir. So at the moment, because of the labored breathing of the child and the monitoring show that the retention of CO2 and the partial pressure of oxygen was decreasing, so we plan to ventilate a child. So Dr. Vikas, what are the ideal mode of ventilating this child? PCSIMV, pressure control, synchronized intermittent mandatory ventilation. Okay. Dr. Taiba, what will be the initial ventilatory setting in this child? With a case of infant of diabetic mother, due to this the child is suffering from RDS, and now the child is progressing toward a type 2 respiratory failure. What will be the initial ventilatory setting? Dr. Junaid, is there any associated congenital heart disease as well? VSD or something? No, sir. LPDA? No, sir. No. So this is only RDS. RDS. We are managing RDS. Okay. The mode, as the Dr. Bakar said, we will keep it as a pressure controlled SIMV ventilation.
The parameters that we would set is, first parameter is PIP, peak inspiratory pressure. We will keep it in it is between 18 to 24, and in this child, as there is a hypoxia, we will keep it in a bit higher range. We can start from 20 to 22. Mhm. And PEEP, that is the range we do have is 4 to 10. In our case, already CO2 is in higher range, so higher PEEP can cause more retention of CO2, so we'll keep it in low normal range, that is 4. Number 3 is respiratory rate. As we want to wash out the CO2, so we'll keep it in higher range, that is 60 breaths per minute. T inspiratory would be 0.3 seconds. FiO2, we can start with the 100%, and later on we can taper it down after, and repeat ABGs after 3 to 4 hours or 2 hours. Okay. डॉक्टर जुनैद, आप इसको ना उसमें जो है वो पावर स्लाइड शेयर में ना जाएं, इसी में रहें ताकि हम एडिट कर सकेंगे। ठीक है। स्लाइड शेयर ना करें, आप इसी शीट को ना ऐसे ही रखें, ऐसे भी नजर सही आ रहा है, तो इसमें जो भी है उनको एंटर करके हम उसको देख सकते हैं, एडिटिंग चलती रहेगी। ठीक है। So हमने उसकी we have started ventilating this child on PCSIMV mode, and PIP we selected is 20, and PEEP is 5, FiO2 is 60%, rate is 50, and IE ratio is 1:2.7. सर इसमें कोई चेंजेस हम करना चाहें? सर जैसे CO2 बहुत ज्यादा है तो हमें हाई रेट से स्टार्ट नहीं लेना चाहिए, हम पेशेंट को So now look at the child parameters. अब हमने जब we have started giving the pressure of 20, and on this 20 PIP, the tidal volume that the child is receiving is, इन सेटिंग्स पे जरा कमेंट्स ले लें। सर मुझे do you agree with the settings? सर इसमें रेट थोड़ा ज्यादा होना चाहिए ताकि कार्बन डाइऑक्साइड वॉश आउट हो जाए, और पीप अगर हम कितना ज्यादा रखना चाह रहे हैं, 60 हो जाए, और पीप हम थोड़ी सी कम कर लें, 4 पे कर लें ताकि रिटेंशन भी ना हो। ठीक है, पीप इसलिए आप कम करना चाहते हैं कि CO2 रिटेन ना हो, और रेट आप ज्यादा करना चाहते हैं। ठीक है, रेट ज्यादा रखने का क्या मकसद है? CO2 ज्यादा वॉश आउट हो, मिनट वेंटिलेशन बढ़ाना चाहते हैं जी, CO2 ज्यादा वॉश आउट हो, कार्बन जुनैद इनकी चेंजेस कर दें जो ये कह रहे हैं। ठीक है, 60 हो गया ना, ये पीप 4 हो जाएगी। FiO2 60% ठीक है, ये भी 100 से हम दे के आ सकते हैं। FiO2 पे डिपेंड करता है हम ऑक्सीजन कितनी दे रहे हैं। फाइन विद 60%, हम बाकी पैरामीटर्स हम अच्छे कर रहे हैं, हम रेट ज्यादा दे रहे हैं, हम पिप ज्यादा दे रहे हैं, तो होपफुली वी आर फाइन विद 60%। आई रेशियो कितनी रखें तैयबा? Yes, 1:3. We need a prolonged expiration to wash out the CO2. Or 1:2.7. जरा ये थोड़ा समझा दें। 60 रेट आपने रखा हुआ है, तो 1:3 आई रेशियो कैसे एडजस्ट करेंगे इसमें? 0.3 T inspiratory would be 0.3 second. 0.3 इंस्पिरेशन और 0.7 एक्सपिरेशन। Yes sir. 1 सेकंड का एक साइकिल है ना? Yes sir.
क्योंकि उसमें ऑलरेडी और ये एग्जैक्ट 1.3 तो 1:3 तो नहीं बन सकेगी, फिर 1:2.7 ही बन सकेगी तकरीबन। ठीक है, चलिए। और आप जरा दें मेजर्ड वैल्यूज क्या आई हैं सर जो ये सेटिंग्स इनिशियली हम की थी, जिसमें हम पिप 20 दे रहे थे और रेट 50 था, FiO2 60% थी और आई रेशो 1.27 थी। इसमें जो टाइडल वॉल्यूम बेबी को डिलीवर हो रहा था वो 25 ml था, मिनट वेंटिलेशन थी वो 1250 आ रही थी। तो अगर तो जिस तरह डॉक्टर तैयबा डॉक्टर वकास ने बताया कि हम रेट को 60 पे ले जाते हैं और टाइडल वॉल्यूम 25 ml डिलीवर हो रहा होता है और बेबी में स्पॉन्टेनियस एफर्ट भी आया तो रेस्पिरेट रेट 80 तक चला जाएगा। तो एक्सपेक्टेड मिनट वेंटिलेशन कितनी होगी डॉक्टर तैयबा? Okay, minute ventilation is basically tidal volume into respiratory rate, and it would be 60 into 25. 60 into 25, it would be 1500. ठीक है, व्हाट इज द नॉर्मल मिनट वेंटिलेशन? 2 to 400 ml per kg. The weight of our child is probably 4 kg. 4 kg. So the range would be 800 to 1600 total. Is it okay or not? Sir, I think it is okay. हमारे बच्चे को हमें जल्द से जल्द स्टेबल करना चाहिए, वो पहले हाइपोक्सिया हाइपरकार्बिया में चल रहा है। हाँ ये है कि हम बाद में एबीजीज रिपीट करके हमारे पैरामीटर्स इंप्रूव होते हैं तो हम सेटिंग्स टेपर डाउन कर सकते हैं। ठीक है, क्या ये इनिशियल सेटिंग्स पे किसी और के कमेंट भी लें? डॉक्टर तनवीर, डॉक्टर समीना, जुनेद, इन पे कमेंट करेंगे आप? आई थिंक फर्स्ट वाली जो सेटिंग है वो ज्यादा बेहतर है। रेट को हम अगर इंक्रीज करने के लिए अगर टीआई को थोड़ा इंक्रीज कर दें। सर आगे चल लें? इस तरह से ये, so we have now decided, based on the disease what will be the initial settings. So I think Dr. Junaid, what about the other parameters? Can we have a longer display for monitoring? On the one side settings, and the other side all the monitoring parameters including expert monitoring, minute ventilation, I ratio, then SpO2. Is it possible? सर वो ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, because subsequently or you can have a second view for ABGs in this case. सर ऑब्वियसली हम जो है ना वो अपना एक वेंट की सेटिंग जो इनिशियल सेटिंग है उस पर हम पेशेंट की वेंटिलेशन स्टार्ट करके उसको थोड़ी देर बाद ये असेस करेंगे कि हमारी इन वेंटिलेटरी सेटिंग्स पे पेशेंट का क्या रिस्पांस आ रहा है। अगर तो जैसे कि इनिशियल सेटिंग्स मैंने स्टार्ट की थी
ये पिप बाई पिप 20/5 थी, FiO2 60% थी, वेट 50 था, आई रेशो 1:2.7 थी, और उसमें उसका 25 ml टाइडल वॉल्यूम डिलीवर हो रहा था, मिनट वेंटिलेशन 1250 थी, रेट टोटल 70 आ रहा था, एंड टाइडल CO2 60 आ रही थी। इन वेंटिलेटरी सेटिंग्स पे अगर मैं पेशेंट को देखता हूँ कि क्लिनिकली उसकी चेस्ट राइज अच्छा है, उसके साथ SpO2 92+ जा रही है, उन सेटिंग्स को मैं मेंटेन करके जो रिपीट एबीजीज होंगी उन पे मैं डिसीजन करूंगा कि मैं इन वेंटिलेटरी सेटिंग को कैसे चेंज करना है। और अगर जिस तरह सर आप बता रहे हैं, मतलब जैसे डॉक्टर वकास ने, डॉक्टर तैयबा ने बताया, इनिशियल सेटिंग्स को हम थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल कंडीशन इसमें वेरी कर सकते थे, कि जैसे हम पीप कम कर लें, रेट थोड़ा ज़्यादा कर लें, और मिनट वेंटिलेशन ज़्यादा अच्छी दें, ताकि पेशेंट जो है ना वो अर्ली इंप्रूव हो जाए। लेकिन पीप ज्यादा रखने का मेरा कंसेप्ट इसमें ये था कि क्योंकि पेशेंट इज ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम आरडीएस, लंग स्टिफ है, तो हम उसको पिप और पीप थोड़ी अच्छी दें। रेट 50 इसे रखा था कि सर रेट और टाइडल वॉल्यूम का जो कम्बिनेशन में मिनट वेंटिलेशन 1250 आ रही थी, वो उस पेशेंट के लिए एडिक्वेट थी कि उसके लिए पेशेंट जो है ना वो अच्छा वेंटिलेट हो। तो ऑब्वियसली हम जो है ना वो हायर सेटिंग पे भी जा सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम सेटिंग जिसमें मिनट वेंटिलेशन ज़्यादा होगी तो उसमें जो है ना वो अपना वॉल्यूट्रामा के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सर हम अगर रेस्पिरेटरी रेट बहुत ज्यादा कर देंगे तो उसका नुकसान ये होगा कि जो है ना गैस एक्सचेंज है वो कम हो जाएगा, एल्वियोलाई और ब्लड बैरियर से जो है एल्वियोलाई और ब्लड बैरियर से एक्सचेंज जो है ना उसको टाइम नहीं मिलेगा, तो रेट बहुत ज्यादा हाई भी नहीं करना चाहिए। Yes, at that time when we put the child on the ventilator, and the clinical monitoring done show heart rate of 150, respiratory rate total at that time was 70, and saturation improved to 92%, CRT was 3, input and output was in balance, and united reflexes were poor. So अब डॉक्टर वकास हम एबीजीज कब रिपीट करेंगे वेंट पे डालने के बाद पेशेंट की? नॉर्मली 2 to 3 आवर्स में, 2 से 3 घंटे। ठीक है, डॉक्टर तैयबा? सर प्रैक्टिस में तो हम रूटीनली जो हम नर्सिंग में कर रहे होते हैं वो यही है कि अगर हमारा पेशेंट इतना उसमें डीरेंजमेंट्स आ रही थी, हमने वेंटिलेट कर दिया और अगर हमने हाई सेटिंग्स भी दे दी है, तो हम इवन 30 मिनट्स 1 आवर बाद भी रिपीट कर सकते हैं अगर हमारे पास वो इजीली अवेलेबल हैं तो। हमने 30 मिनट्स के बाद एबीजी रिपीट की, और 30 मिनट्स के बाद जो एबीजी थी वो फर्स्ट एबीजी की तरह थी, फिर हमारा नेक्स्ट प्लान क्या होगा? वो दिखा दें जरा, स्क्रीन वो वाली शेयर कर दें। सर हमने आइडियली आधे घंटे, अब जो हमने एबीजी ने 4 घंटे के बाद रिपीट की, आइडली तो 30 मिनट्स के बाद होनी चाहिए, लेकिन जैसे क्लिनिकली और मतलब जाहिर सी बात है कि रियलिटी में होता है कि हम थोड़ा टाइम लेके एबीजी करते हैं। तो हमने एबीजी रिपीट की तो उसमें तकरीबन 4 घंटे वेंटिलेट करने के बाद जो सेटिंग्स मैंने दी थी, तो उसकी पीएच 7.15 होगी, PCO2 58 और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 90 और बाइकार्ब 31 हो गया। उधर ले सेटिंग्स इसमें इनका डिस्प्ले एक पेज पे हो जाए, नेक्स्ट टाइम से इसको ऐसे करें, वो ग्रेजुअली वो सारी चीजें ना एडॉप्ट की स्टेप बाय स्टेप। डॉक्टर पास अब हमारा प्लान क्या होगा? हमारा पेशेंट वेंटिलेटर पे है, इनिशियल वेंटिलेटरी सेटिंग जो हमने चूज की थी, हमने इस पे वेंटिलेशन स्टार्ट की है, 4 घंटे के बाद की एवरेज बताती हैं कि पीएच स्लाइटली इंप्रूव हुई है, PCO2 60 से 58 पे आ गई है, PO2 90 पे चलेगी और बाइकार्ब 31 हो गया। नाउ व्हाट विल बी आवर नेक्स्ट प्लान ऑफ वेंटिलेटिंग दिस बेबी? मेरे ख्याल से पेशेंट तो इम्प्रूव हुआ है तो थोड़ा वेट करेंगे, ये सेटिंग पे एक ओपिनियन है इसमें, वेट कर सकते हैं। डॉक्टर तैयबा? सर आप अपना ओपिनियन है इसमें, 4 घंटे के बाद अगर हम क्लिनिकल स्टेटस को देखते हैं और ये एवरेज आती हैं तो इसमें ये आपकी PO2 काफी अच्छी हो और PCO2 अभी ठीक है, और एसिडोसिस भी अभी है। ठीक है। तो अब सैचुरेशन इस पे कितनी? सर सैचुरेशन 92+ है।
तो आप इसकी जो है वो सेटिंग्स में FiO2 को कम कर सकते हैं थोड़ा सा। ठीक सर। बाकी तो सेटिंग बहुत ज्यादा चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ FiO2 को कम करेंगे क्योंकि PO2 एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ा है। 90 यूजुअली 70 PO2 पे SPO2 नॉर्मल रहनी चाहिए। ठीक सर। सर अब इसमें जैसे कि आपने बताया कि PCO2 बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुई, इनिशियल वेंटिलेटर सेटिंग जो कि मैंने दी थी उसमें मेरा रेट 50 था, तो मैंने 4 घंटे बाद असेस किया कि ये PCO2 चेंज नहीं हो रही, तो फिर मैंने प्लान किया कि मैं इसका रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज करूँगा। ठीक है, तो फिर रेस्पिरेटरी रेट को हम इंक्रीज करके 60 तक ले गए। लेकिन ये आप रेंज जो रख रहे हो वो परमिसिव हाइपोकार्बिया की रेंज है ना? जी सर। अगर हमने सेटिंग्स को एडजस्ट करना है तो ये इसको बढ़ाना पड़ेगा आपको। ठीक सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है, हमने सपोज 50 रेस्पिरेटरी रेट दिया हुआ है और ये हमारी 715 pH आ रही है, 58 CO2 है, तो हम ये वो आप वाली बात परमिसिव हाइपरकार्बिया की रेंज में तो आ गया है, तो हम वेट नहीं कर सकते मजीद, हम नेक्स्ट एबीजीज रिपीट करा लें बिफोर? मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें देखना ये चाहिए कि अगर आपकी SpO2 कितनी है। अगर SpO2 98 99 आ रही है तो फिर हम इसको FiO2 को कम कर सकते हैं थोड़ा सा। बाकी सेटिंग तो सेम रहना चाहिए। लेकिन अगर SpO2 भी बॉर्डर लाइन ही आ रही है तो फिर हम इसको एज सच रहने देंगे, वेट करेंगे। ठीक है। सर 4 घंटे के बाद हमने एबीजी रिपीट किए हैं, टिल जो है ना वो 7 बजे की जो एबीजी थी उनमें भी जो है ना वो जो लैब पैरामीटर थे वो सेम थे जो कि 4 घंटे पहले के थे। जो पीएच है 7.15 थी, जो पीसी 58 थी, PO2 90 और बाइकअप 31। जुनैद, इसमें मैं थोड़ा सा ऑब्जेक्ट ये करूंगा कि अगर परसिस्टेंटली देखें, हाइपोक्सिया आपने 4 घंटे पहले ही करेक्ट कर दिया था। जी सर। हाइपोक्सिया करेक्ट हो गया हुआ है, सैचुरेशन ठीक है, तो एसिडोसिस तो इंप्रूव होनी चाहिए ना, क्योंकि कोई मेटाबॉलिक कंपोनेंट भी नहीं है उसका। सर बेसिकली जो RDS है उसका, उसमें एक ये भी तो फैक्टर चढ़ आता है कि जो है ना वो अपना जो एल्वेओल लेवल पे एक्सचेंज है उतना अच्छा नहीं हो रहा था, तो जब हम FiO2 अच्छी देते हैं ऑक्सीजनेशन तो अच्छी फ़ौरन हो जाती है, लेकिन जो है ना वो अपना जो PCO2 टिश्यू हाइपोक्सिया फिर बाइका भी लो करे ना, और आस्ता आस्ता वो तो वेंटिलेशन के साथ साथ। अगर देखना आपने यहाँ पे बाइका तो बिल्कुल सही दे दिया है। जो उसकी मैनिफेस्टेशंस हैं वो तो ठीक है, यानी इन दोनों पैरामीटर्स को देख के सैचुरेशन ठीक है तो पीएच तो बेहतर हो जानी चाहिए, या फिर ये कि इसको लो है अगर, तो फिर इसको मेटाबॉलिक कंपोनेंट अगर साथ है तो उसको करेक्ट करना पड़ेगा। ये थोड़ी सी टैली नहीं करेगा। सही है सर। एक बात कि अगर हमारी 3 PM पे रिपीट की, फिर 7 PM पे हाइपोक्सिया हमारा करेक्ट हो चुका है और हाइपरकार्बिया चल रहा है, तो यहाँ पे हम कोई पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ EGT सस्पेक्ट कर सकते हैं? पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन कैसे करेंगे? आपका हाइपोक्सिया देखें करेक्ट हो गया, तो आपका हाइपोक्सिया करेक्टेड है और इसको PCO2 को आप बहुत ज्यादा हाई नहीं ले रहे क्योंकि 60 तक आप इसको समझते हो। पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन किस किस्म की, कोई कोलैप्स? नहीं, अगर हमारी EGT में सिक्रीशंस हैं तो वो नहीं, वो फिर हाइपोक्सिया तो नहीं है सर, आप ठीक है। सबसे पहले हाइपोक्सिया आएगा ना? यस सर। EGT ब्लॉक होगी तो सबसे पहले हाइपोक्सिया आएगा। सर इन पैरामीटर्स को हम करेक्ट कर लेते हैं जो कि मैं लिखे हुए हैं, तो 60 से की बजाय 70 और ये 68 और इसको 68 ले लेते हैं। 68। जुनैद, मैं ये कह रहा था कि इसको हम ना, मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी नेट की भी कनेक्टिविटी के इश्यूज आ रहे हैं। जी सर। हम इस तरह ना करें कि एक पूरी जरा शीट प्रॉपर पूरी डेवलप कर लें लंबी सी, ठीक है, जिसमें ना हर चीज
हम जैसे एक RDS का पूरा केस है, जी सर। तो पूरा नेचुरली कैसे चलता है, फिर एक हार्ट फेलियर का केस है, फिर कैसे चलता है, तो हम जी इसको, सर। मेरा ख्याल है हम इसको पोस्टपोन कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। तो जी सर। एक तरफ हम एक तरफ ये ओपन शीट रखें, लोग एंटर करते जाएं, एक तरफ जो हमारी प्री फिल्ड शीट है हम वो दिखाते जाएं साथ साथ। ठीक है। सही है ना? तो क्योंकि जी सर। पार्टिसिपेंट्स भी कम है और वो सारे के सारे हमारे सीनियर लोग ही हैं जिनको ऑलरेडी चीजें पता है। जी सर। तो इस डिस्कशन का तो बेसिक ज्यादा फायदा था कि जूनियर्स ज्वाइन करते थे। जी तो सर। मेरा हाल इसको हम यहाँ स्टॉप कर देते हैं। ठीक तो है। वकार क्या ख्याल है? ये देखे ना, ये यासर का भी मैसेज आ रहा है, इंटरनेट का इशू है। मेरा ख्याल है इसको हम इतनी एफर्ट हम इसको नेक्स्ट टाइम पे पोस्टपोन कर देते हैं। चले ठीक है सर, नेक्स्ट कहीं कर देते हैं फिर, क्योंकि क्योंकि ये मेरे हाथ में डिस्कशन भी थोड़ा एक्टिव हो तो फिर ही फायदा है। जी, और हर बंदे को जी मेरे सर। हाथ से इंटरनेट का आज ऐसी प्रॉब्लम है। ठीक है, मेरा ख्याल है इसको हम नेक्स्ट टाइम ना, ये वेंटिलेटरी स्ट्रेटेजीज और मॉनिटरिंग को हम किसी यहीं से दोबारा से टेकअप कर लें। जी ठीक है, इंशाल्लाह। ठीक है, सही है सर। चलो ठीक है, ओके सर। चलो, बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं इसको। ओके ओके सर, ओके, काश, अल्लाह हाफिज़, ओके सर, अल्लाह हाफिज़।